Hello, friends. Good afternoon. Yes, good afternoon, everyone. आप माइक अनम्यूट करके बोलिए. Good afternoon, sir. यस, चलो. मुझे लगा गुड आप. आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून. मुझे लगा साउंड नहीं है, इसलिए फिर मैंने कहा ओके. सो टुडे वी विल लर्न a very important medicine of homeopathy for the sexual dysfunction in male and female. तो ये जो रेमेडी है, ये जो मेडिसिन है, ये बोथ मेल एंड फीमेल सेक्सुअल डिसफंक्शन को कवर करती है. सो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, और ये रेमेडी डॉक्टर विजयकर सर ने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन की है. सो उसके साथ साथ कुछ एक विजयकर सर की केस भी आज हम यहाँ देखेंगे, बट वो केस बहुत ही शॉर्ट में है क्योंकि उसकी हिस्ट्री इज नॉट अवेलेबल. सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने नोट डाउन किए थे, वही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसमें डिस्कस करेंगे. ओके. सो the heading, eyes do not see what mind does not perceive. Under this heading we will learn the conium. So conium or conium. Conium is a remedy that leaves sexuality in a very special way. So कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो मेल और फीमेल में होते हैं, और उस वजह से, जैसे कि बहुत से पर्सन्स में अगर ये इनएबिलिटी है, मेल हो या फीमेल, अबाउट सेक्स, तो उस वजह से बहुत से पर्सन्स में गिल्ट फीलिंग भी होता है. कुछ पर्सन्स में मतलब उस वजह से, जैसे कि मेंटल डिप्रेशंस, और बिकॉज ऑफ दिस डिसएबिलिटी, तो कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं. तो बोथ मेंटल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स कवर्ड बाय दिस रेमेडी कोनाइम. So Konaim is a remedy that leaves sexuality in a very special way, because he has troubles for the practice and also for the absence of sex. So absence of sex के बहुत से reasons है, तो वो reasons भी इस remedy cover करती है. So the anxiety of conscience, torments and paralysis, torments and the paralyzed or paralyzes the conine patient. Anxiety concerns. That means because of this disability, patient feels guilt. So his fear to punishment turns him into a serious and a formal individual. Turns him into a serious and a formal individual. That's why he shelters in religion and governs himself with strict parameters of ethic and correctness.
everything bring him everything brings him guilt, but especially about sex. तो सेक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी वरीज, एंजाइटीज और गिल्ट जैसे फीलिंग्स ओनली बिकॉज ऑफ द सेक्स ये पेशेंट्स में आते हैं, एंड आफ्टरवर्ड पेशेंट गोज इनटू ए डिफरेंट स्टेज, फिर वो फीमेल हो या मेल हो, goes into indifferent stage, that indifferent stage, that depression covered by this conime. So conime acts when a man cannot get or keep an erection firm enough for sexual intercourse. Erectile dysfunction can be a sign of a physical or psychological condition, and these both conditions covered by conine. Paralyzed state, na? So that is physical weakness. Then it can cause stress relationship, जिसकी वजह से उस रिलेशनशिप पे उसका बहुत बुरा असर होता है. Relationship become, sometimes it become break also. So causes stress, relationship strain, and low self confidence because of fear also. The main symptom is a man's inability to get or keep an erection firm enough for sexual intercourse. Patients suffering from erectile dysfunction should first be evaluated for any underlying physical or psychological conditions. If treatment of the underlying conditions does not help, think of conine. या आपने कॉन्स्टिट्यूशनल दिया, थेरापेटिकली भी दिया, पेशेंट बहुत सारे मॉडर्न साइंस और इधर उधर के अल्टरनेटिव पैथीज के मेडिसिन खा के आया है, और उसके बाद भी पेशेंट को रिलीफ नहीं हो रहा है, देन थिंक ऑफ कोनाइम. कोनाइम 100% will cure that patient. So कोनाइम in female, तो ये मेल कंडीशन हमने देखी. नाउ इन फीमेल में किस तरह का सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है. सो फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन इज मोर टिपिकल as women age and is a progressive and widespread condition. Common symptoms associated with female sexual dysfunction include diminished vaginal lubrication, pain and discomfort upon intercourse, decreased sense of arousal, and the difficulty in achieving orgasm, persistent recurrent problems with sexual response, desire, orgasm, and pain that distress you or strain your relationship with your partner. So because of this condition, the relations breaks. So इस तरह के सभी कंडीशंस कवर करता है कोनाइम. So many women experience problem with sexual function at some point, and some have difficulties throughout their life. Female sexual dysfunction can occur at any stage of life. It can occur only in certain sexual situations. So sexual responses involves a complex interplay of psychology, emotions, experiences, beliefs, lifestyle, and relationship. सभी बातों पे असर होता है इस डिसफंक्शन का, और इन बातों पे उसका बुरा असर होने की वजह से पूरी लाइफ स्पॉइल हो जाती है, रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं, कितने सारे रिश्ते
टूट जाते। सो disruption of any component can affect sexual desire, arousal, or satisfaction. These all things covered by Onayam. So Onayam in female, symptoms depending on the type of sexual dysfunction. First, low sexual desire. This most common of female sexual dysfunction involves a lack of sexual interest and willingness to be sexual. Same symptom graphitis भी cover करता है. Then sexual arousal disorder. Patient desire for sex might be intact, but she have difficulty with arousal or unable to become. Then orgasmic disorder. She have persistent or recurrent difficulty in achieving orgasm after sufficient sexual arousal and ongoing stimulation. And the fourth symptom, that is sexual pain disorder during the act, painful intercourse. So she have pain associated with sexual stimulation or vaginal contact. So these are the symptoms covered by Onayam. So ये उसके स्पीयर ऑफ एक्शन भी हो गई कि कौन से सिम्टम्स ओनायम से ट्रीट किए जा सकते हैं. स्पीयर ऑफ एक्शन, व्हाट इज क्यूरेबल एंड व्हाट इज नॉट क्यूरेबल, ये भी इसमें कवर हो गया है. नाउ ओनायम इन डिटेल्स, मेंटल्स ओनायम के कैसे होते हैं. He has the delusion that the world is full of enemies. This is delusion of Onayam. तो जब भी कुछ सेक्सुअल डिस्फंक्शन का पेशेंट आता है, उसमें अगर पेशेंट में इस टाइप के कुछ डिल्यूजन्स मिलते हैं तो उसे लेने चाहिए. That delusions are more important to us. So he has the delusion that the world is full of enemies who pursue him to injure him. That is delusion of injury. He feels persecuted. This makes him restless, frightened, and easily startled with a great sensorial and affective hypersensitivity. The situation is unbearable and paralyzes him. मतलब ओनायम पेशेंट कभी भी किसी भी डिफॉर्मिटी की वजह से, इंटरनल, फिजिकल, he feels like a paralyzed. Because of disability of muscles or any growth in body, he feels completely paralyzed. कि मैं अब किसी काम का नहीं, मैं अब कुछ नहीं कर सकता. So this is the delusion, perception of Onayam. So this situation is unbearable and paralyzes him not only in love, with indifference. तो जैसे सेक्सुअल इनएबिलिटी उसमें आ जाती है, देन उसमें इंडिफरेंस टुवर्ड्स द पार्टनर, टुवर्ड्स द लव आना शुरू हो जाता है. सो नॉट ओनली इन लव विथ इंडिफरेंस, बट आल्सो विथ इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल इंपोर्टेंस. यस, तो माइंड भी काम करना छोड़ देता है. का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, एक यंग बॉय जो 24 एज का था, वो पेशेंट मेरे पास आया. ही वाज अ बॉडी बिल्डर, बहुत जिम करता था, हैविंग वेरी हेवी बॉडी, मसल स्ट्रॉन्ग, और बहुत शर्माते हुए आया क्योंकि उसकी मैरिज फिक्स हो गई थी. और उसने बताया कि सर मुझे थोड़ा सेक्सुअल प्रॉब्लम है और उसकी वजह से मैं इतना डिप्रेशन में गया कि मुझे ऐसा लगता सुसाइड करना.
क्योंकि मैं अब किसी काम का नहीं रहा। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन की वजह से फील्स कंप्लीटली पैरालाइज, दो ही हैज अ स्ट्रॉन्ग मसल्स, स्ट्रॉन्ग बॉडी, बट कंप्लीटली पैरालाइज। कुछ जान ही नहीं बोले बॉडी में, कुछ भी नहीं, मोटिवेशन होता ही नहीं, स्टिमुलेशन होता ही नहीं। सो दिस इज द कोनायम, और कोनायम के एक डोज से ही बिकम नॉर्मल। Okay, so not only in love with indifference, but also with intellectual and physical importance. Konak is sentimental and he gets sick when he suffers a love disappointment. Yes, he gets sick when he suffers a love disappointment. He is jealous with the characteristic that jealousy drives him to sexual excitement. He desires company and he feels better in company. Although his slow nature makes him boring. तो बहुत ही अच्छे सिम्टम ये कोनाइम के है। और ये जो सेकंड सिम्टम है, he is jealous with the characteristics that jealousy drives him to sexual excitement. इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। एक बार मतलब एक कपल मेरे पास आया और उन्होंने उन तो हस्बैंड की ये कंप्लेंट थी कि मेरे पार्टनर को, मेरे वाइफ को इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं, हमारी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ कंप्लीटली स्टॉप है, उसे सेक्सुअल एक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, और शी हैज एवर्जन फॉर दैट एक्ट। सो फिर उस वजह से मैं बहुत परेशान हूं, आप इसे कोई ट्रीटमेंट दीजिए। तो ये बहुत पहले की बात है, बहुत पहले ये मेरे पास कपल आया था और मैंने बहुत हिस्ट्री लिया उसकी। लेडीज बताने को कुछ भी तैयार नहीं थी, उसने कोई सिम्टम नहीं बताया, क्या होता है कुछ नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बोले मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम, मुझे प्रॉब्लम नहीं। तो कोई हिस्ट्री नहीं दिया। बहुत से मेडिसिन मैंने ट्राई किया, कॉन्स्टिट्यूशनल निकालने का कोशिश किया, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन कुछ साल बाद वो पर्सन मेरे पास फिर से आया। अब वो एक चीज से बहुत परेशान था, वो था कि उसकी वाइफ उस पे बहुत शक करती है, और वो शक इस टाइप का था कि वो पर्सन बोले कि हमारी जॉइंट फैमिली है और मेरी वाइफ की वजह से हमारे फैमिली में बहुत डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं, बहुत कॉरल्स होते हैं, हमारे मतलब पूरे फैमिली का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज होगा बिकॉज ऑफ हर नेचर। और वो नेचर था जेलसी विद हिज सिस्टर इन लॉ, मतलब उसकी जो भाभी थी बड़ी, उसके साथ इसे ऐसा लगता था कि मेरे हस्बैंड का कोई रिलेशन है। और इस वजह से पूरी फैमिली, पूरे घर के लोग परेशान हो गए थे कि ये इस तरह से अचानक कैसे सोचने लग गई। तो फिर आप इसे ट्रीटमेंट, मेरे वाइफ की ट्रीटमेंट करो, उसे कोई मेडिसिन दो। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आपका जो मेन प्रॉब्लम था वो कैसे है। तो उन्होंने बताया सर, जब से ये उसे ऐसा लगा कि भाई मैं, मेरे साथ संबंध नहीं है, तो इनके कहीं ना कहीं और संबंध है, तो फिर वो शक की नजर से हमारी भाभी की तरफ देखने लग गई, कि उसे ऐसे लगने लगा कि मेरे रिलेशंस मेरे भाभी के साथ। तब से बोले इसकी इच्छा हो या ना हो, ये मुझे रेडी करती है रिलेशंस के लिए। तो फिर जब उस लेडी को उन्होंने लाया उनके वाइफ को हिस्ट्री के लिए, फिर हिस्ट्री में ये बात क्लियर हो गई कि सर, जब से मेरे माइंड में ये थॉट्स आने लग गए, तब से मुझे सेक्सुअल डिजायर क्रिएट हो गई।
और तब से फिर मैं इनको फोर्स करने लगी। फिर कुछ मतलब बैक हिस्ट्रीज उनसे लिए कि फैमिली, उनके बचपन की हिस्ट्रीज, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स उन्होंने बताए हिस्ट्री में बचपने की जो मैं नहीं बता सकता। और फिर उन सब इस पर से उनकी मेडिसिन कोनाइम आई, और कोनाइम देने के बाद उनके सेक्सुअल रिलेशंस जो भी डिसफंक्शंस थे वो प्रॉपरली फंक्शन में चेंज हो गए, फंक्शंस प्रॉपरली होने लगा। देन उनको कुछ मेंस्ट्रुअल्स प्रॉब्लम्स भी थे, वो भी सॉल्व हो गए। और उनका एक सबसे मेन प्रॉब्लम था जो गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया था कि सर्विक्स बिकम थिक एंड उसकी जो पैथोलॉजी थी वो मुझे टर्मिनोलॉजी याद नहीं है, लेकिन बिकॉज ऑफ दैट सेंसिटिविटी उनको जो इंटरकोर्स था बहुत ही पेनफुल होता था, दैट्स व्हाई शी निग्लेक्ट दैट थिंग्स। तो ये सब बातें भी वो उनको नियम से क्योर हो गई। देन उनका जो सर्विस का प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। सो दिस इज द कोनाइम। कोनाइम बहुत ही एक्सलेंट रिजल्ट देता है इन मेल एंड फीमेल्स आल्सो। Okay, so he desires company and he feels better in company, although his slow nature makes him boring. और एक इसकी मैं आपको एक बहुत ही एक्सलेंट केस बताता हूँ। एक लेडी मेरे पास आती है ट्रीटमेंट के लिए, जो उसके हस्बैंड से बहुत परेशान है, और नियर अबाउट वो 25 ईयर्स से साथ में रह रहे हैं, लेकिन उनके दोनों के बीच में कोई रिलेशंस नहीं। और बिकॉज ऑफ दिस वो साथ में एक फैमिली में रहते हैं लेकिन कोई रिलेशंस नहीं। और इस वजह से हस्बैंड के कहीं बाहर रिलेशंस क्रिएट हो गए। तो अभी वो परेशान है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इस बात की वजह से कहीं हमारी प्रॉपर्टी न चली जाए, कहीं मेरे हस्बैंड हमें छोड़ के पूरा उस लेडी के नाम पे ना कर दिए। तो इस वजह से वो लेडी परेशान है, और उसने ये हिस्ट्री बताया कि 25 ईयर्स से कोई रिलेशनशिप नहीं, हस्बैंड वाइफ एज अ हस्बैंड वाइफ वो इस तरह का बिहेव ही नहीं करते। तो उसे उस लेडी को कोनियम मेडिसिन देने के बाद धीरे धीरे जो उसके कुछ फीमेल हार्मोन्स थे वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गए। फीमेल हार्मोन्स कंप्लीटली उनके नेगेटिव में चले गए थे, और नाउ वो स्टार्ट हो गए। और वो कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाए। यस, सो दिस इज कोनाम। कोनाम बहुत ही एक्सलेंटली एक्ट होती है इवन ऑन द हार्मोन्स। यस, सो एवरीथिंग impresses him in a bad way. Yes, everything impresses him in a bad way. So sadness appears with the tendency to weep loudly, absorbed in thoughts and dwells. If his desire for solitude is not respected, he drives him off with insult. He is violent and destructive. This is the syphilitic conine. जब कोनाइम को कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है, कोनाइम एक बहुत ही साइलेंट इंडिफरेंट पेशेंट होता है, और उससे उस इंडिफरेंसी को अगर कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा या फिर उसे निग्लेक्ट करेगा या फिर उस ही फील्स दैट इंसल्ट। ये लोग मेरे मुझे देख के कन्नी काट रहे, हम बोलते हैं ना, मुझे देख के कन्नी काट रहे, देन ही फील्स इंसल्टेड, और उसके बाद he become angry, or anger may he become violent and destructive. So he is morals and dictatorial also, with intolerance to contradiction. Yes, intolerance to contradiction. That's why the relationship with his children is very difficult. Besides his proud and his contradiction tendency don't make things easier. This is the कोनार। तो बिकॉज ऑफ इंडिफरेंस, तो इस एक्ट का, इस डिसफंक्शन का उसके माइंड पे
उसके नेचर पे, उसके विल पे, हर तरफ आपको उसका इफेक्ट दिखेगा और सब कुछ सेंट्रलाइज होता है एक ही चीज पे, दैट इज द सेक्सुअल डिसफंक्शन. So it's not necessary the presence of indifference to loved one for the prescription affective paralysis, because that is the final stage of affective hypersensitivity and weakness, mental as well as physical. So even to love, it tiresome for him. So it appears the solitude desire. He feels estranged from his family and isolated. Finally, the weariness is so deep that he shelters. In indifference, the misanthropy and loathing for life. ये वो कपल्स जो बहुत सालों से अलग रह रहे हैं, एक दूसरे से अलग, फैमिली से अलग, या फिर काम की वजह से, जॉब की वजह से वो लोग जल्दी से मिल नहीं पाते, बहुत दिन तक, महीनों तक, सालों तक वो अलग रहते हैं. और उन पर्सन्स में एक इंडिफरेंस अबाउट सेक्स आ जाता है, इंडिफरेंस अबाउट लव्ड वन आ जाता है, इंडिफरेंस अबाउट द रिलेशनशिप आ जाता है. तो उन पेशेंट्स के लिए कोनाइम इज द बेस्ट. So he gets worse in company, although he is afraid of being alone. Yes. In Conan, aversion is not an active reject attitude. Yes, aversion is not an active reject attitude. He gives up on account of indolence. In this period, we find the aversion to his children, family, maid, woman, and company. He desires solitude. अकेले में रहना, अकेले में बैठना. जो पर्सन फैमिली से दूर होते हैं वो किसी से कांटेक्ट नहीं रखते, काम करना, रूम में आके सो जाना, कहीं जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं. दिस इज कंप्लीटली सॉलिट्यूड. So his expression is calm and expressive, inexpressive, like a wax figure. Yes, ये बहुत ही important symptom है कोनाइन का. His expression is calm. आप ऐसे बहुत से लोग होते हैं, उनके एक्सप्रेशन देखो, वो जल्दी से हंसेंगे नहीं, जल्दी से किसी को एक्सप्रेशंस देंगे नहीं. एक टिपिकल टाइप का फेस उनका होता है, जैसे कि हम बोलते हैं ना वैक्स फिगर. दैट मीन्स जो मोन्यूमेंट्स होते हैं जो वैक्स से बनाए होते हैं, उनके चेहरे देखो, एक ही एक्सप्रेशन आपको ऑलवेज दिखेगा, है ना. सो दिस इज वैक्स फिगर. मोम की जैसी उनकी फिगर बन जाती. सो इन हिज अनसोशिएबिलिटी, कभी किसी से मिलना नहीं, कभी कहीं जाना नहीं, कभी कोई फंक्शन में जाना नहीं, किसी से मिलना नहीं. Sometimes he is like natural lonely mind. और इसके पीछे एक ही रीजन होता है, द सेक्सुअल डिसफंक्शन. Sexual relationship not established, completely distracted because of this dysfunction. So because he gets also worse by company, although he is afraid of being alone. But natural mute needs the love that seems to reject and suffers for its absence. Sometimes that conaim does not express. Yes, does not express मतलब वो नाइट्रम से भी नॉन एक्सप्रेसिव बन जाता है. नाइट्रम तभी एक आधी बार बता देगा क्योंकि he is very much sensitive to relationship. Natrum is very much sensitive to relationship. But conaim ये बात कभी नहीं बताएगा. इसीलिए उस लेडी ने मुझे फर्स्ट जब मैंने हिस्ट्री लिया तब उसने कोई सिम्टम्स नहीं बताया, लेकिन जब घर में प्रॉब्लम्स होने लगे तब उसने फिर पूरी हिस्ट्री दिया था.
यस, आई एम फीलिंग जेलस टुवर्ड्स माय सिस्टर इन लॉ। तो उसके जो भी बड़ी जो बोलते जगानी थी, उसके वजह से उसे बहुत जेलसी फील हो रही थी, और तब उसमें ये फिर डिजायर फॉर सेक्स आना शुरू हो गया, और उसके बाद फिर कोनाई में बहुत ही अच्छा वर्क उसमें किया। यस, इन कोनाई sexuality is extremely conflictive. Yes, sexuality is extremely conflictive. He has elements for the practice of sex, to anxiety of conscience, and for the sex absence, maybe because of his biology. That means the absence of sexual intercourse brings trembling weakness. Absence of sex, इसकी वजह से भी they feel weak, trembling, and कोनाई में ये भी एक सिम्टम है कि feels better after sex. So the absence of sexual intercourse brings trembling, weakness, hysteria, excitability, and incapability to sustain mental effort. Sexual thoughts intrude and torments him with blame. मैं ऐसा ही हूं, मेरे में ताकत नहीं, मेरे में पावर नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता. Then because of this thought he goes into depression, and afterward he thinks about suicide. So this is konai. So but extended continence और भी अगर कुछ दिनों तक इस तरह का डिसफंक्शन रहा, absence of sex रहा, also generates guilt. और वो गिल्ट, जैसे कि मेल है तो मेल को ऐसा लगेगा कि यार मेरी वीकनेस की वजह से, मेरी इनएबिलिटी की वजह से, मेरे में जो कमी है फॉर द सेक्स, उस वजह से कहीं मेरे मतलब हाँ मेल को लगेगा कि मेरी वाइफ किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट न हो जाए, और फीमेल को लगेगा कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को बहुत दुख हो रहा है, मेरे हस्बैंड का ये मैं देख नहीं पाती हूँ, कहीं वो किसी और लेडीज की तरफ अट्रैक्ट न हो जाए. सो दिस इज गिल्ट बिकॉज ऑफ दिस. So hysteria and become hypochondria. So this is the konai. Now a simple case. अब ये केस रिलेटेड टू सेक्स तो नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी केस है जो कोनाइम से क्योर हुई है. और ये केस डॉक्टर विजयकर सर ने SCPH प्लस में हमें बताई थी. अ केस ऑफ fibrodysplasia of ossificans progressive. Fibrodysplasia of ossificans progressive. That means fibrodysplasia ossificans progressive is a very rare genetic connective tissue disorder. Genetic connective tissue disorder characterized by the abnormal development of bone. जो बोन की डेवलपमेंट होती है वो एबनॉर्मल होती है इन एरियाज ऑफ द बॉडी वेयर बोन इज नॉट नॉर्मली प्रेजेंट. जहां नॉर्मली बोन नहीं होता है वहीं उसकी एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है. दिस इज द फाइब्रोडिस्प्लेसिया ossificans progressive. Means this patient that was lady, and she is developing extra bone. और extra bone, that means इसका conflict क्या हो सकता है? That means esteem. तो कहीं तभी ये एक छोटी बच्ची थी और उसमें ये प्रॉब्लम डेवलप हो रहा था. That means mother's history is important. So प्रेगनेंसी में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से उसमें ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी आई?
she want extra bone. Why she want extra bone? Why she want extra growth of bone? तो कहीं तभी स्टीम हर्ट हो रहा था एंड शी वांट स्टीम, मुझे और स्टीम चाहिए। सो उस वजह से एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया और ये डिफेक्ट आया बोन में, जीन्स में। सो a case of fibrodysplasia also becomes progressive, that means in duration. So first symptoms was boil on neck. तो ये एक सिम्टम उस गर्ल को सबसे पहले आया था, उसके बाद फिर इसका डायग्नोसिस हुआ। तो बॉइल ऑन नेक, सर टेक्स इट लाइक एंगर सप्रेस, और उसके पूरे हिस्ट्री पर से एक प्रोमिनेंट सिम्टम वहां पे सर को मिला था, दैट वाज, और उस सिम्टम के लिए जो रूब्रिक सर ने सिलेक्ट किया था दैट वाज पेडेंट 2। तो ये जो हिस्ट्री में उसके मिला था कि भाई वो किसी टॉपिक के लिए किसी पर्टिकुलर थिंग के लिए बहुत ही ऑब्स्टिनेट थी, बहुत ही स्ट्रांग थी, और वो चीज अगर उसके सामने आई, वो बात अगर उसके सामने आई तो वो उसे कभी नहीं छोड़ती थी और उसके अगेंस्ट में भी कुछ सुनना नहीं चाहती थी। सो इसका मतलब होता है पेडेंट टू, दैट मीन्स अ पेडेंट इज एन annoying person. Yes, a pedant means an annoying person who is focused on minor details, who is focused on minor details and book knowledge, जो हम बोलते हैं ना किताबी कीड़ा। फिर वो हर किसी भी चीज का अगर एक्सप्लेनेशन देना है तो वो बुक में के रेफरेंसेस लेगा। जैसे कोई पंडित होता है और पंडित हर, अगर कुछ भी उसे एक्सप्लेन करना है, कुछ भी बताना है, किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, तो वो उस बुक में के कुछ रेफरेंसेस लेगा, उसके नंबर्स लेगा, कोड लेगा और वो उसे एक्सप्लेन करेगा। दिस इज द पेडेंट टू। सो डिटेल्स एंड बुक नॉलेज rather than ordinary common sense. Yes, तो ऑर्डिनरी कॉमन सेंस नहीं रहेगा, लेकिन बुक में का कीड़ा होने की वजह से उसे हर चीज पता होती है कि ये कौन से किताब में लिखी है, कौन से पेज पे लिखी है, इसका नंबर क्या है, पेज नंबर क्या है, कौन से लाइन में ये सेंटेंस है। जैसे कि जो हमारे कुछ श्लोक्स होते हैं, तो श्लोक्स का जैसे भी आप हम लोग जब सत्संग सुनते हैं तो बहुत से जो ये साधु संत होते हैं, सत्संगी होते हैं, ये श्लोक का उपयोग करके वो हर चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसी तरह से इसे कहते हैं अति सिद्धांतवादी। इनके सिद्धांत होते हैं और वो उस सिद्धांत से ही चलते हैं। दिस इज द पेडेंट टू। तो सर ने ये चीज उसमें उस लेडी में मिली, इसलिए उसमें सर ने ये रूब्रिक लिया। लेकिन ये रूब्रिक लेने के बाद जो मेडिसिन सर ने प्रिस्क्राइब किया, उससे उसमें और प्रॉब्लम होने लगे। और ये प्रॉब्लम क्यों हुई? Why that remedy become failed? Because of the miasm. So pedant to it is a psychotic rubric. अगर कोई भी पर्सन किसी चीज का सहारा लेके अगर कुछ काम करता है, कुछ बात करता है, कुछ एक्सप्लेन करता है, दिस इज साइकोसिस। सो द पेडेंट टू इट इज अ साइकोटिक रूब्रिक। सो जब सर ने उसे सल्फर दिया था सॉरी, but sulfur it become a psychotic remedy because of this rubric। और जो follow-up आया, that follow-up was induration in axilla, any connective tissue signifies the support। yes, so उसके बाद उसका जो इंड्यूरेशन था सल्फर के बाद, वो फिर से बढ़ने लगा, ग्रोथ वहां पे एक्सेसिव ग्रोथ होने लगी। फिर सर ने वापस फिर रीटेक किया और रीटेक करने के बाद कुछ सिम्टम्स, कुछ हिस्ट्री और सर को मिली, एंड दैट वाज फादर से कुछ मिली, कुछ मदर से मिली। लेकिन सर ने यहाँ पे जो चीज एक्सप्लेन की थी, जो फादर की हिस्ट्री में से मिली थी, तो फादर के हिस्ट्री में से क्या मिला था और फादर को हम एक्चुअली क्या कहते हैं, तो फादर इज फॉर सपोर्ट।
फादर, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट ढूंढना था वो मदर की हिस्ट्री से ढूंढना था, क्योंकि मदर के प्रेगनेंसी हिस्ट्री में ही कुछ तभी हुआ था जिसकी वजह से उसमें ये जेनेटिक जेनेटिक प्रॉब्लम आया, सो जेनेटिक डिफेक्ट आया। तो फादर फादर का यहाँ पे सर ने कंसिडर नहीं किया था, बिकॉज ऑफ फादर इज फॉर सपोर्ट एंड सपोर्ट इट इज साइकोसिस। अगर फादर की हिस्ट्री हम कंसिडर करते थे तो अगेन साइकोसिस होता था, इसलिए सर ने फादर की हिस्ट्री में से कुछ भी नहीं लिया। देन मदर, मदर इज फॉर नर्चरिंग, दैट मीन्स सोरा, और ऐसे केसेस में सोरा इज मतलब मस्ट हो जाता है फॉर द प्रिस्क्राइबिंग पॉइंट। सो सोरा इज मदर। सो ऑसिफिकेंस मीन्स बोन रिलेटेड, that is esteem related, value related. So here exact opposite of a case of osteogenesis perfecta। एक सर ने ये भी रेफरेंस वहां पे दिया था कि उसका भी एक पेशेंट था जो किस तरह से सर ने उसमें अप्रोच अप्लाई किया और वो केस कंप्लीटली क्योर हो गई। सो हियर मदर डिड नॉट गिव अप, यस, मदर डिड नॉट गिव अप। मैंने मतलब मदर की हिस्ट्री में से ये चीज निकल के आई थी कि उसके ऊपर बहुत से प्रहार हुए, मदर के ऊपर बहुत से बातें उसके लाइफ में हुई, प्रेगनेंसी हिस्ट्री में हुई, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने फाइट किया। ओके, सो हियर मदर डिड नॉट गिव अप। लास्ट टाइम ही टुक पेटेंट, यस, तो सर ने लास्ट टाइम जो पेटेंट टू रूब्रिक लिया था दैट वाज साइकोसिस, इट वाज साइकोसिस, वी वांट सिपिलिटिक। सो यहाँ पे जो मदर की हिस्ट्री से मिल रहा था उसमें से सर ने सिपिलिटिक कैच किया, और वो सिपिलिटिक क्या था, व्हाई शी बिकम स्ट्रांग एंड एंग्री। मदर ने वहां पे इतना सब कुछ होने के बाद भी गिव अप क्यों नहीं किया, उसके ऊपर बहुत प्रहार हुए, हर कोई उसे टॉर्चर करता था, हर कोई उसे कुछ ना कुछ बोलता था, और वो सब में से वो निकल के आई। उसे गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा आता था, बट शी वॉज स्ट्रांग इनफ। सो सर टेक्स रूब्रिक, एक पैथोलॉजिकल रूब्रिक सर ने उठाया, इंड्यूरेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, यस, दैट इज extra bone formation is connective tissue, so induration of connective tissue, बहुत ही अच्छा रूब्रिक ये हमारे रेपर्टरी में है। then delusion will receive injury, she was fighting whole pregnancy period, she was fighting, so delusion will receive injury and periodicity, all complaints aggravate every December, and she was diligent, that girl was diligent. So after the repertorization, connective tissue hard indurations, delusion injury ratio, will and periodicity. The remedy, conime and silicia. So silicia, it is angry as well as mild, obstinate, diligent also, but it is chilly, and conime, some prescribed conime because जो हिस्ट्री उसमें उस मदर में मिली थी कि some induration history, some sexual history, aversion for sex also. So इस दो चार पॉइंट के ऊपर सर ने कोनाइम सिलेक्ट किया, क्योंकि कोनाइम अगेन उसमें एक सिम्टम था, शी वांट्स डार्कनेस, शी लाइक्स द डार्क इन द रूम, लाइट में उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, एंड सिलिशा को लाइट चाहिए क्योंकि सिलिशा इज वेरी टिमिड, fear in dark. So Silisha, she has a lot of anger, so ruled out. And Silisha is basically timid, having projected teeth. Yes. And Conan wants darkness. Conan likes light, bright light also. So Conan was given, and afterward, that induration become less. यस, सो वो कंप्लीट उसका फॉलोअप नहीं देखने को मिला, क्योंकि
सर ने शायद एक दो ही फॉलोअप दिखाए थे, बट दैट इंड्यूरेशन गेट्स डिक्रीज बिकम लेस, और उसके स्ट्रक्चर में भी काफी चेंज उस केस में आया था. सो दिस वाज द केस. ओके, सो इस केस में से आपको क्या सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा बताइए. और कुनाइम जो आज हमने बहुत ही अलग तरीके से पढ़ा, क्योंकि कुनाइम शायद ही इस तरह से आपने कभी पढ़ा होगा. सो दिस इज कुनाइम. और आज के लेक्चर में आपको अबाउट कुनाइम कैसा लगा बताइए, अनम्यूट करके. यस, बोलिए फास्ट. बहुत बढ़िया सर, अलग ही फेस था आज कोनेम का। यस. तो कोनाइम एक पेशेंट ऐसा भी होता है जो इंडिफरेंस में तो जाता है, जब उसे उसकी एबिलिटी पता चलती है देन ही बिकम इंडिफरेंट. बट इंडिफरेंट होने के बाद भी, जैसे कि मैंने जो केस बताया यंग बॉय की, एक्चुअली ही वाज माय, बहुत पहले वो मेरा मतलब क्लिनिक में काम करता था वो लड़का. जब वो 17-18 साल का था, लेकिन उसके बाद उसने छोड़ दिया. उसके बाद उसने जिम ज्वाइन किया, बॉडी बना लिया, फिर कुछ अलग काम करने लग गया. तो जब उसके शादी का टाइम आया तब वो आया कि सर मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है और मैं अभी सुसाइड करूंगा. लेकिन वो गिव अप नहीं करता, उसने सुसाइड नहीं किया. उसने ये सोचा कि मैं एक बार सर के पास जाऊंगा और ट्रीटमेंट लूंगा, शायद मैं अच्छा हो ही जाऊंगा, क्योंकि सर के यहाँ मेरे यहाँ उसने वैसे पेशेंट देखे थे, बहुत अच्छे हो गए. जिनको भी ये प्रॉब्लम थे वो अच्छे हो गए. तो कोनाइम कभी गिव अप नहीं करेगा, दो ही बिकम इंडिफरेंट, दो ही बिकम कंप्लीटली नॉन सोशल. यस, सो दिस इज कोनाइम. ओके, सो किसी को कुछ कहना है तो फास्ट बोलिए, या फिर हम स्टॉप कर देते. सर आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार रीनल का सर फिर से पढ़ा दीजिए। कौन सा? रीनल सर, रीनल के किडनी डिसीजेस सर, किडनी डिसीजेस ओके ओके. रिपीट। किडनी डिसीजेस में क्या चाहिए वो बताइए. सर कन्फ्लिक्ट तो पता है सर, जैसे और चीजें हैं पूरा सर, एक बार किडनी का पूरा पढ़ा दीजिए कोर्स। ओके ठीक है, ये अपना कंप्लीट होने के बाद देखूंगा. ओके. ओके सर, थैंक यू सर। चलो, ओके, थैंक यू, बाय बाय, सी यू. ओके. Yes, sir.